Good afternoon student, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So with this video we start day 10 of our 50-day quick revision series. If you missed our previous video, link is in the description, and for more videos please do subscribe to our channel. In this video we are going to have quick revision of chapter strategies for enhancement in food production. So what is animal husbandry? It is the agriculture practice of breeding and raising livestock. Animal husbandry deals with the care and breeding of livestock like buffalo, cow, pig, horse, cattle, sheep, camel, goat, or any other animal which is economically beneficial to humans. It also includes poultry farming and fisheries. More than 70% of livestock population of livestock live in India and China. So in India and China we have a large quantity of livestock, but our quality is not that superior. Next we see dairy farm management. Dairying is the management of animal for its milk and its product for human consumption. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम ऐसे एनिमल्स को पालते हैं या डोमेस्टिकेट करते हैं जिनसे हम मिल्क ऑब्टेन कर सकें और वो ह्यूमंस क्या है कंज्यूम कर सकें. मिल्क प्रोडक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म. जितनी अच्छी ब्रीड होगी उतना अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा. So for better milk production, you have to selection of good breeds having high yield potential combined with resistant to disease is very important. तो आपको ऐसी ब्रीड सेलेक्ट करनी पड़ेंगी जिनकी यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो और वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, क्योंकि जब डिजीज़ नहीं होगा तभी यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट वी हैव पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड यूज फॉर फूड और फॉर देयर एग. हम इसमें ऐसे बर्ड्स को रखते हैं या ऐसे बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं या उनसे हम एग ऑब्टेन कर सकते हैं. इट मेनली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड विद टर्की एंड गीज. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री एंड सुटेबल ब्रीड. आपको ऐसी ब्रीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो डिजीज़ फ्री हो और जिस भी एनवायरनमेंट में आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो अच्छे से अडेप्ट कर सके. प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, आपको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जिससे कोई और एनिमल या कोई प्रेडेटर उनको हार्म ना पहुंचा सके. प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनको अच्छे से खाना दे, पानी दे. एंड हाइजीन एंड हेल्थ केयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेयरी फार्म मैनेजमेंट में भी और पोल्ट्री फार्मिंग में भी कि आप एक वेटरनरी डॉक्टर से सलाह करते रहें. यू शुड बी इन रेगुलर टच विद अ वेटरनरी डॉक्टर. नेक्स्ट वी हैव एनिमल ब्रीडिंग. So what is the aim of animal breeding? The aim of animal breeding, you have to remember this line, is increasing the yield of animals and improving the desirable qualities. तो हम animal breeding इसलिए करते हैं ताकि जो animals हैं उनकी yield increase हो सके और उनमें desirable qualities आ सकें. What is a breed? A breed is a group of animal related by descent जिनके ancestors same रहे हों and similar in most of the characters like general appearance, feature, size, configuration. और वो लगभग एक जैसे दिखते हों. There are two type of breeding, or you can say two kinds of breeding. Mating of more closely related individual within the same breed. So you have to remember that we are mating in closely related individual which are from same breed for 4 to 6 generation is done in inbreeding. So inbreeding include mating of closely related individuals within same breed for 4 to 6 generation. It includes breeding techniques are discussed here. Identification and mating of superior male and female. So first you have to identify a superior male and a superior female of same breed. Then you have to evaluate of progeny and identification of superior male and female from progeny. इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी. इनब्रीडिंग की वजह से जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. सेम टाइप के अलील क्या है, सिमिलर अलील्स कम टुगेदर. क्लोज ब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी. पर अगर आप कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कर रहे हैं तो उससे क्या है, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक डिजीज़ हो जाता है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि रिसेसिव अलील एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है. तो 4-6 जनरेशन के बाद जो रिसेसिव अलील है वो एक साथ आ जाते हैं और उनका इफेक्ट हमें दिखने लग जाता है एज रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट वी हैव आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग
is the breeding of unrelated animal. You have to mark this. Outbreeding is the breeding of unrelated animal, which may be between individual of same breed but having no common ancestor. So if you are mating individual of same breed but they have no common ancestor, then it is called outcrossing. But if you mating between individual of different breed, then it is known as crossbreeding. There is an example of crossbreeding in NCERT. It goes by the name Hirsa Dale, which we obtained from the crossing of Bikaneri apes and Merino rams. Or you can entirely skip to next level, which is different species. You can make a cross between individual of different species. It is known as interspecific hybridization, and mule is the example of interspecific hybridization. Controlled breeding experiments are carried out using artificial insemination. So what is artificial insemination? The semen is collected from the male that is chosen as a parent, or you can say superior male, and injected into the reproductive tract of selected female by the breeder. So artificial insemination is collection of semen from superior male and injected into the reproductive tract of superior female. So there is a very important technique known as multiple ovulation embryo transfer technology is used to increase the success rate of artificial insemination. So you have to remember this line also. Which technique is used to increase the success rate of artificial insemination? Answer will go multiple ovulation embryo transfer technology. In this method, a cow is administered with hormone FSH, follicular stimulating hormone. तो एक काऊ को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग लगाते हैं टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन, जिससे उसमें फॉलिकुलर मैच्योरेशन हो जाए, एंड सुपर ओव्यूलेशन. सुपर ओव्यूलेशन मीन्स इंस्टेड ऑफ 1 एग दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग. एक नॉर्मली एक एग बनता था, पर आपने FSH लगाया, उसकी वजह से 6 to 8 एग्स बनते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and then transferred to the surrogate mother. So you can use multiple ovulation embryo transfer technology to increase the herd size in a very short period of time. Next we have beekeeping. Beekeeping, also known as apiculture, is the maintenance of hives of honeybee for production of honey. इसमें हम आर्टिफिशियल हाइव्स बनाते हैं और जिसमें हनी बी रहती है और हम उससे हनी का प्रोडक्शन करते हैं. हनी इज़ अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू. हनी में हाई जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. एंड ऑल्सो फाइंड यूज इन द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, लाइक आयुर्वेदा में हनी का बहुत यूज़ है. इट ऑल्सो प्रोड्यूस वी वैक्स. जो वी वैक्स है वो भी हमें मिलता है, जिसको हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं. द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ हनी बी इज़ एपिस इंडिका. जो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है हनी बी की, वो एपिस इंडिका है. नेक्स्ट वी हैव फिशरीज. फिशरीज इज़ एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल. फिशरी में हम, जैसे कि आपने सुना होगा, मछुआरे होते हैं, वो जाते हैं पॉन्ड में, लेक में या फिर समुद्र में, वहाँ से वो फ़िश पकड़ते हैं और फिर क्या है, उनको मार्केट में लाके सेल करते हैं, या फिर वो अपना एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है उसमें ग्रो कराने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं. फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन, कतला, रोहू, कॉमन कार्प. यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 names, fresh water fishes. Common marine fish are hilsa, sardine, mackerel and pomfret. This is also very important. You have to remember this example. Different techniques have been applied to increase the production of aquaculture and pisciculture. Blue revolution is implemented for increase fish production. तो ब्लू रेवोल्यूशन हमने इसलिए किया था ताकि हम लोग क्या है, फ़िश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि इंडिया में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे फ़िश क्या है, एज अ मेन फूड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग. It is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yield and are disease resistant. तो प्लांट ब्रीडिंग में हम एक पर्पस के साथ
प्लांट स्पीसीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, बेसिकली उनके जीन्स में मैनिपुलेशन करते हैं, जिससे हम डिज़ायर्ड प्लांट क्या कर सकें, ग्रो कर सकें, जो कि कल्टीवेशन के लिए बेटर सूटेड हो, एनवायरनमेंट को ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकें और बेटर ईल्ड दे सकें और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हों। द मेन स्टेप इन प्लांट ब्रीडिंग आर, द फर्स्ट स्टेप इज collection of variability is the collection and preservation all the different wild varieties and species and relative of cultivated species. The entire collection having all the diverse allele for all genes in a given crop is called germplasm connection. So you have to remember this point. जब हम वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करते हैं तो जितने भी वेराइटीज़ हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की, फॉर एग्जांपल हम वीट को ले लेते हैं, वीट की जितनी भी वेराइटीज़ हैं आपकी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में या कहीं जो आपके फॉरेस्ट है वहाँ पे, हम उन सभी जीन्स को क्या है इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी स्टडी करते हैं कि इनमें से कौन सा सुपीरियर जीन है जिसको हम जो हम प्लांट बना रहे हैं उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड. नेक्स्ट वी डू द इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. तो हम लोग क्या है सुपीरियर मेल प्लांट ढूंढेंगे और सुपीरियर फीमेल प्लांट ढूंढेंगे ताकि हम उनके बीच में क्रॉस करवा सकें और डिज़ायरेबल कैरेक्टर क्या है एक साथ ला सकें. द सिलेक्टेड प्लांट आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम जो सुपीरियर प्लांट्स हमने क्या है ढूंढे हैं उनके बीच हम क्रॉस करवाते हैं. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट टू ऑब्टेन डिज़ायर्ड क्रॉप कैरेक्टर. तो हमने क्या है उनके बीच क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में, जिससे क्या है हम कोशिश करते हैं कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो सारे सुपीरियर कैरेक्टर एक साथ आ जाए. और ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ईयर्स भी लग जाते हैं, क्योंकि जो चांसेस होते हैं सारे सुपीरियर कैरेक्टर एक साथ आने के वो बहुत कम होते हैं. नेक्स्ट वी डू सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट. तो जब हमने क्रॉस करवा लिया, when we done with the cross of selected parents, now out of progeny we will select the superior recombinant या ऐसे recombinant जिनमें क्या है वो superior gene या alleles आए हैं. then we do the testing, then we release and commercialization of new cultivator. तो testing के दौरान in testing we grow all this superior recombinant in different zone of India for 3 to 4 season as to see the viability of their combination की जो ये जो जीन आए हैं ये कितने टाइम तक वायबल हैं, कितने टाइम तक एक साथ रहते हैं. उसके बाद हम इनको क्या है जो फार्मर्स हैं उनको दे देते हैं और फिर कमर्शलाइज कर देते हैं ताकि जो ऑल ओवर इंडिया है ये इसको ग्रो किया जा सके. नेक्स्ट वी सी सम एग्जांपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सो फर्स्ट वी हैव व्हीट एंड राइस. प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इंक्रीज ट्रेमेंडसली बिटवीन 1960 टू 2000. तो वीट और राइस की प्रोडक्शन क्या है 1960 से 2000 के बीच में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, 5 to 6 फोल्ड इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ राइस एंड वीट. तो सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ नॉर्मन बोरलॉग ने बनाई थी और उसके बाद इंडिया में इनको क्या है पॉपुलर करने का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है एस स्वामीनाथन को. तो इसमें हमने क्या है जो वीट और राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ हैं उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया था और इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. वी ऑल्सो नो दिस इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्शन बाय द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. Several varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, which were high yielding and disease resistant, were introduced all over the rice and wheat growing field of India. तो कुछ varieties थी सोनालिका एंड कल्याण सोना, उनको हमने जहाँ पे जिस एरिया में भी राइस और वीट लगाते थे हम वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये हाई यील्ड थी और डिजीज रेजिस्टेंट थी. सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचुंग नेटिव. Two new varieties which are better yielding and semi-dwarf, Jaya and Ratna, were developed in India. तो अगर क्वेश्चन आता है कि which varieties are developed in India, you have to answer Jaya and Ratna. Next we see the case of sugarcane. Sugarcane, Saccharum barberi was grown in north. Saccharum barberi grown in north in India and Saccharum officinarum is grown in South India.
दीज टू स्पीसीज आर सक्सेसफुली क्रॉस, इन दोनों का हमने एक सक्सेसफुल क्रॉस किया टू गेट सुपीरियर केन वेराइटीज़ कंबाइनिंग द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। और हमने क्या है, इनकी जो भी सुपीरियर क्वालिटीज़ थी उनको सबको इकट्ठा किया, जिससे हमें क्या है, हाई यील्ड, थिक स्टेम, हाई शुगर एंड एबिलिटी टू ग्रो इन शुगर केन एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो हमने एक ऐसी वैरायटी बनाई जो हम ऑल ओवर इंडिया क्या है लगा सके, क्योंकि सैक्रम बारबरी को हम साउथ में यूज़ नहीं कर सकते थे और सैक्रम ऑफिसिनेरियम को हम नॉर्थ में यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने इनका हाइब्रिडेशन करवा के एक ऐसी वैरायटी निकाली जो हम कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वी सी मिलेट्स। Hybrid maize, jowar and bajra are developed in India. These varieties are high yielding and resistant to water stress. तो हमने मेज, ज्वार और बाजरा की वैरायटीज़ इंडिया में डेवलप की जो कि काफ़ी हाई यील्डिंग थी और वाटर स्ट्रेस मतलब पानी की कमी को बहुत अच्छे से झेल सकती थी, क्योंकि इन इंडिया फार्मिंग में पानी की बहुत कमी रहती है। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन इंडिया फॉर फार्मिंग। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए जो हमने प्लांट ब्रीडिंग की वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सम क्रॉप वेराइटीज़ ब्रेड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट टू फंजाई, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज़ आर रिलीज। तो हमने ऐसी वेराइटीज़ बनाई हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो फंजाई, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज़ से रेजिस्टेंट थी। सो वी सी सम एग्जाम्पल एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वी सी वीट की हमने हिमगिरी वैरायटी डेवलप की विच इज़ रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्टाइप रस्ट एंड हिलबर्ट। ब्रेसिका, पूसा स्वार्निम जो वाइट रस्ट को रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर, पूसा सुबारा, पूसा स्नोबॉल K1 जो कि ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट को रेजिस्टेंट है। काउपी, पूसा कोमल विच इज़ रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट। चिली, पूसा सदाबहार विच इज़ रेजिस्टेंट टू चिली मोज़ेक वायरस एंड टबैको मोज़ेक वायरस। These all resistant variety we developed with the help of hybridization experiments. Next we see mutation. Mutation is the process by which genetic variation are created through change in base sequence within the gene resulting in creation of new characters or trait not found in parental type. तो म्यूटेशन से हम लोग क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है DNA RNA में उसको हम लोग क्या है चेंज करते हैं, जिससे जो जीन बनता है वो डिफरेंट जीन बनता है और ऐसे प्रोटीन बनाता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। न्यू प्रोटीन इज़ डेवलप्ड विच आर बेनिफिशियल फॉर अस इन द फार्मिंग, और वो पेरेंटल टाइप्स में नहीं पाए जाते। इट इज़ डन बाय यूजिंग म्यूटेंट्स लाइक केमिकल्स, जो हम केमिकल यूज़ करते हैं फॉर म्यूटेशन ब्रीडिंग उनको म्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया हुआ हमने इथाइल मीथेन सल्फोनेट। और रेडिएशन में हम गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग। देयर इज़ द एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग इज मूंग बीन्स रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। तो मूंग बीन्स जो कि रेजिस्टेंट हैं अब येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से, वो हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग से ऑब्टेन की है। नेक्स्ट वी हैव प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपमेंट रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। और हमने क्या है इंसेक्ट पेस्ट के लिए जो प्लांट ब्रीडिंग की है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप प्रोडक्ट आर डिस्ट्रक्टेड बाय इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑन लार्ज स्केल। तो जो क्रॉप प्लांट्स थे और क्रॉप प्रोडक्ट्स थे वो क्या है डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे इंसेक्ट से और पेस्ट से लार्ज स्केल पे। टू प्रिवेंट दिस लॉस न्यू वेराइटीज रेजिस्टेंट टू देम आर डेवलप्ड। इस लॉस को रोकने के लिए हमने ऐसी वेराइटीज़ डेवलप की जो कि इंसेक्ट्स के रेजिस्टेंट है। Breeding is similar to other breeding program and resistant gene is obtained from cultivated varieties, germplasm collection of crop और wild relatives। तो जो इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं उसमें जो प्रोसीजर है वो कॉमन प्रोसीजर है कि पहले हम कलेक्शन ऑफ जर्मप्लाज्म करते हैं, फिर सुपीरियर प्लांट्स का इवोल्यूशन करते हैं, फिर इनका क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद उनको टेस्ट करते हैं और उसके बाद उनको क्या है कमर्शलाइज किया जाता है। Some example of insect resistant varieties are Brassica, also known as Rapeseed mustard, variety is Pusa Gaurav। insect pest जिससे ये resistant है वो है aphids। flat beans, इसमें हमने Pusa Same 3 और Pusa Same 2 हमने डेवलप की हैं जो varieties हैं, और ये resistant है जैसिड, एफिड और फ्रूट बोरर से। ओखरा, commonly known as भिंडी,
इसमें हमने वेराइटीज़ डेवलप की है पूसा सवानी एंड पूसा A4 जो कि रेजिस्टेंट है शूट एंड फ्रूट बोरर से। नेक्स्ट वी हैव बायोफोर्टिफिकेशन एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। Breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher protein and healthier fats. Breeding for improved nutritional qualities having following objective of improving. तो हम ऐसी क्रॉप बनाना चाहते हैं जिनमें हायर जो एग्जिस्टिंग क्रॉप है उनसे हायर लेवल ऑफ वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो और हायर प्रोटीन हो और अच्छे फैट हो, जिससे क्या है जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हम एक अच्छी हेल्थी डाइट दे पाएँ। तो हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं? प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी विल बी हाई इन क्रॉप्स, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी शुड बी हाई, विटामिन कंटेंट शुड बी हाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट शुड बी हाई। IARI न्यू दिल्ली have released many varieties of vegetable crop which are rich in vitamins or vitamins and minerals like vitamin A, enriched carrots, spinach and pumpkin, and vitamin C, enriched bitter gourd, बथुआ and mustard। तो IARI न्यू दिल्ली ने ऐसी बहुत सारी वैरायटी रिलीज़ की हैं जिनमें हमने विटामिन और विटामिन कंटेंट को इंक्रीज़ किया है, जैसे कि विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, स्पिनच एंड पम्पकिन हमने लाए हैं और विटामिन सी रिच्ड बिटर ग्राउंड, बथुआ एंड मस्टर्ड हमने डेवलप किए। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस varieties and their names and in which vitamin they are richer. Next we have single cell protein or SCP. So due to our increasing population soon we are facing shortage of our food resources। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हमारे फूड रिसोर्स कम होने लग गए। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड। तो उसमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन में हमने एक डिस्कवरी की है जिसको हम सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। माइक्रोब्स आर ग्रोन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। तो इसमें हम माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो करते हैं ताकि हम एक अच्छा प्रोटीन उनसे ऑब्टेन कर सकें। हियर इज़ अ एग्जाम्पल नोन एज स्पायरुलिना कैन बी ग्रोन ईजिली ऑन मटीरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो, प्रोसेसिंग प्लांट, starch, molasses, animal manure and even sea waste to produce large quantity and can serve as food rich in protein, mineral, fat, carbohydrate and vitamin। So हम इन माइक्रोब्स को बहुत कम कॉस्ट में, जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्ट वाटर ऑफ पोटैटो पे भी हम लोग इनको ग्रो कर सकते हैं एक्सपोनेंशियली और इनसे हम लोग एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जब फूड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो हमें ऐसे और मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वी सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। द कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और यू कैन से एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। तो जो कैपेसिटी होती है एक सेल से या किसी एक पार्ट से टिश्यू से पूरा प्लांट ग्रो करने की, उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में जो एक्सप्लांट लिया जाता है वो कॉमनली द एक्सप्लांट वी टेक फॉर टिश्यू कल्चर इज़ एपिकल मेरिस्टेम बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम वायरस और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। Thousands of plant can be produced from explant in short interval time using suitable nutrient medium, aseptic condition and use of phytohormone। तो हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं अगर हमारा जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें हम जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं वो उसमें प्रेजेंट हो, एसेप्टिक कंडीशन मतलब स्टरलाइज्ड हो, उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो और फाइटोहॉर्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन को एक सही तरीके से यूज़ करके हम बहुत सारे प्लांट क्या है ग्रो कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। और जब हम इस लार्ज स्केल पे प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, आइसोलेशन ऑफ सिंगल cell from their plant and after digesting their cell wall fusing the cytoplasm of two different varieties is called somatic hybridization। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है पोमैटो, जिसमें हम टोमेटो और पोटैटो को साथ में ग्रो करना चाहते थे। ऑब्वियसली इट इज़ अनसक्सेसफुल, बट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यही इंक्लूड होता है कि हम एक सेल को दूसरे के साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज़ करके एक सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप करने की कोशिश करते हैं। द हाइब्रिड ऑब्टेन इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिड। जो हमें हाइब्रिड इससे मिलता है उसको हम सोमेटिक हाइब्रिड बोलते हैं।
So on day 11 we will have a quick revision of chapter microbes in human welfare, and if you like our videos, please subscribe to our channel and revise with us with handwritten notes and many important questions which we discuss on our YouTube channel. Thank you.